بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الیکشن کمیشن کا افواج پاکستان سے انتخابات کے لیے فورس کی درخواست۔ GHQ کی جانب سے انتخابات کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی گئی۔ GHQ کی جانب سے کہا گیا کہ تمام سیکیورٹی فورسز ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر سے نبرد آزما ہیں۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر خارجہ پاکستان کی دورہ ترکیہ کی بازگشت۔ ترکیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس معطل، ملک کی مسائل سے راہ فرار۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی عوام کا سوشل میڈیا پر شدید رد عمل کا اظہار۔ مڈلینڈز ڈاکٹرز کے زیر اہتمام سالانہ فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام۔ سالانہ ڈنر میں ڈاکٹرز اور دیگر شعبہ جات کے ماہرین نے خواتین اور بچوں کے ہمراہ شرکت کی۔ شرکاء کی مظفر آباد میں ہسپتال اور سندھ کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے تیسرے سیزن کی افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں صدر کشمیر پریمیئر لیگ عارف ملک اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر پریمیئر لیگ سے نئے نوجوانوں کو تجربہ کار کھلاڑیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ادارہ معارف اسلام میں یوم ولادت امیر المومنین علی علیہ السلام عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مڈلینڈز بھر سے مومنین اور مومنات کی بھرپور شرکت۔ مولانا معظم عباس کہتے ہیں، یہ دن تمام عدالت خواہوں اور حریت پسندوں کے لیے مبارکباد کا دن ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں تقریب کا اہتمام۔ تقریب کے شرکاء کو صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ قونصلر جنرل سردار عدنان رشید کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت پر بریفنگ۔ اور ترکی اور شام میں زلزلے کی تباہ کاریاں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ زلزلہ متاثرین کی تعداد 23 ملین سے تجاوز کر سکتی ہے۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاک مکہ میٹ لمیٹڈ، UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham. B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں GHQ کی جانب سے انتخابات کے لیے فوج، رینجرز اور FC اہلکاروں کو دینے سے معذرت کر لی گئی۔ GHQ نے موقف اختیار کیا کہ سیکیورٹی اہلکار ملک میں دہشت گردی کے پیش نظر اندرونی اور بارڈر سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ GHQ کی جانب سے وزارت داخلہ کو مراسلہ موصول ہوا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ GHQ نے موقف اختیار کیا کہ قومی اسمبلی کے 64 حلقوں اور صوبوں میں انتخابات کے لیے اہلکاروں کی تعیناتی ممکن نہیں ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ مراسلے میں کہا گیا کہ صرف راجن پور میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب کے لیے پنجاب رینجرز دوسرے حصار میں موجود رہے گی۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے ضمنی اور صوبوں میں عام انتخابات کے لیے پاک فوج رینجرز کی تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ ذرائع نے مراسلہ سے متعلق بتایا کہ GHQ نے جواب دیا کہ سیکیورٹی اہلکار دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر ملک کی اندرونی اور بارڈر سیکیورٹی پر مامور ہیں اور سیکیورٹی اہلکار 27 فروری سے 3 اپریل تک ہونے والی ڈیجیٹل مردم شماری میں مصروف ہوں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ترکی میں زلزلے کی تباہ کاریوں کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو ترک قوم سے اظہار یکجہتی کے لیے ترکی کا دورہ کریں گے، جس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کو بھی معطل کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے محدود وسائل پر مزید دباؤ ڈالنے کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے۔
तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर बराए ख़ारजा अमूर बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज़हार यकजहती के लिए तुर्की का दौरा करेंगे, जिसके लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी मुअत्तल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सोमवार को एक ताकतवर ज़लज़ले ने जनूबी तुर्की और शुमाली शाम में तबाही मचा दी थी। पाकिस्तान की जानिब से सरकारी और अवामी सतह पर जहाँ इस ज़लज़ले के बाद फौरी तौर पर तुर्की से इज़हार अफसोस किया गया, वहीं हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियों में हाथ बटाने के लिए रेस्क्यू सामान और टीमें भिजवाने का भी ऐलान किया गया। ताहम ऐसे में जब ये खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो सरकारी तौर पर तुर्की का दौरा करने वाले हैं, तो सोशल मीडिया पर सार्फिन ने हैरानी का इजहार करते हुए इस फैसले पर सवालात उठाए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तुर्की दौरे के हवाले से कोई बाकायदा एलानिया जारी नहीं किया गया और न ही इस दौरे की मनसूखी का ऐलान किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी हॉल में मिडलैंड्स डॉक्टर्स की जानिब से सालाना फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मिडलैंड्स भर से डॉक्टर्स और दीगर प्रोफेशनल्स ने अपनी फैमिलीज के हमरा शिरकत की और मुजफ्फराबाद हस्पताल और सिंध के लिए दिल खोलकर अतियात दिए। सालाना डिनर में पिछले साल में होने वाले कामों की आगाही और आइंदा मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन। बरतानिया में पाकिस्तानी डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। कोरोना वायरस की बीमारी के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करके और अपनी जानों को ख़तरे में डालकर दूसरों की जानों को बचाने का जज्बा दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम का बाइस बना, जिसकी वजह से बरतानिया भर में पाकिस्तानी डॉक्टरों को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टरों ने 2005 में आज़ाद कश्मीर में खौफनाक ज़लज़ले के दौरान मुजफ्फराबाद का विजिट किया था। वहाँ की सूरत हाल देख कर डॉक्टर सैयद यूसुफ इफ्तिखार ने डॉक्टरों के एक ग्रुप से मिलकर मिडलैंड डॉक्टर्स के नाम से एक फलाही तंजीम बनाई, जिसके जरिए मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मेडिकल सहूलियात मुहैया करने की गर्ज से एक अस्पताल कायम किया गया, जिसमें बरतानिया की तर्ज का इलाज किया जाता है, ताकि आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते में गरीब और नादार लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया करने में अपना किरदार अदा कर सके। गुज़श्ता रोज मिडलैंड डॉक्टर्स के ज़ेर एहतमाम सालाना डिनर मुनक्किद किया गया, जिसमें मिडलैंड भर से डॉक्टर्स और दीगर प्रोफेशनल्स ने फैमिली समेत शिरकत करके दिल खोल कर अतियात दिए। तकरीब के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव मिडलैंड डॉक्टर सैयद यूसुफ इफ्तिखार ने ब्रीफिंग देते हुए माजी में होने वाले कामों की तफसीलात से शुरका को आगाही दी, जबकि नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग भी की गई। इस मौके पर डॉक्टर इफ्तिखार, शफकत हुसैन, डॉक्टर शबी अहमद, मोहम्मद यूनस, शब्बीर अख्तर और दीगर ने CNI न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हमारा इंफॉर्मेशन इवेंट था। हमने अपने मेंबरान को बताया कि हम किस कदर और कैसे काम करते हैं। आज़ाद कश्मीर, सिंध और अब तुर्किया और शाम में भी काम करने के बारे में प्लानिंग की जा रही है। हम लोगों ने प्रेजेंट किया अपना काम सारा, जो पिछले 15-17 साल से हम कर रहे हैं कश्मीर में और सिंध में और अफ्रीका में, जहाँ भी मिडलैंड डॉक्टर्स जो है वो चैरिटी का काम करती है, तो उन सब की प्रेजेंटेशन हम लोगों ने की, बताया लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी जो मेन वर्क है ना, वो हॉस्पिटल है कश्मीर में, जो हम बिल्कुल मुफ्त चलाते हैं, टोटली है, जैसे NHS का है। और NHS के तो पैसे होते हैं, फंडिंग होती है, हमारी फंडिंग का किसी गवर्नमेंट इदारे से नहीं होती। हम पैसे जमा करते हैं लोगों से और पूरी दुनिया से, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, दुबई से, और हम वो खर्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर। मिडलैंड्स डॉक्टर्स की जो फलाई हॉस्पिटल है मुजफ्फराबाद में, उसमें यूरोलॉजी सर्विसेज मैंने 2018 में शुरू की। आपको सुन के हैरानी होगी कि एबटाबाद से ऊपर नॉर्थ में फ्री यूरोलॉजी सर्विसेज की कोई सहूलत मुहैया नहीं थी। पूरे आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में कोई फ्री यूरोलॉजी सर्विसेज मौजूद नहीं थी, जो हमने शुरू की हैं। अब स्टेट ऑफ द आर्ट यूरोलॉजी सर्विसेज मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, जिसमें हमने लेज़र सर्विसेज मौजूद हैं, किडनी स्टोन्स के लिए, प्रोस्टेट के लिए सर्विसेज मौजूद हैं, और लिथोट्रिप्सी सर्विस का भी इंतज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट मिडलैंड्स हॉस्पिटल में किया जा रहा है। मिडलैंड डॉक्टर्स का जो हॉस्पिटल है, इसमें मैं खुद जा चुका हूँ पर्सनली काम करने के लिए। इट इज़ बेटर दैन मोस्ट ऑफ द NHS हॉस्पिटल्स। हर वो फैसिलिटी वहाँ पे है जो NHS में यहाँ पे है। मरीज़ों के साथ जो सबसे अच्छी बात इस हॉस्पिटल में ये है कि वो तमीज़ से पेश आते हैं, और इनका स्टाफ इतना अच्छा तरीके से पेश करता है कि लोग जो हैं वो वहाँ से उनका आधा मर्ज उस तरह दूर हो जाता है। मिडलैंड डॉक्टर्स 2003 से वहाँ काम हमने शुरू किया था। 2013 से हमारा हॉस्पिटल पूरा ऑपरेशनल हुआ था, और वहाँ हमने जो डिपार्टमेंट अभी तक इस्टेब्लिश किए हैं उनके बारे में हमने बताया है।
جو ہم ابھی تک جتنے ہم نے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. یہ چیریٹی بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے. دیر از اے لاٹ آف نیڈ جو ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بس یہی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. پلیز ہیلپ اس ٹو ہیلپ دیم. ہمیں ان سب کا سپورٹ رہے گا تو ہی جو ان کی چیریٹی ہے یہ آگے چلے گی. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آرگنائزیشن کو زیادہ بڑھائیں, ینگر ٹیم کو زیادہ لائیں, آپ جائیں وہاں پہ کام کریں, ریموٹلی کام کریں, آن لائن آپ اپنی فیسلٹی دیں. تو بہت سے طریقے ہیں کہ آپ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ینگر جنریشن ہے اب یہ اس کو بڑھائیں گے آگے. Job these guys do, Midland Doctors, is absolutely amazing. I'm taken back for what they do, so inshallah hopefully we'll be supporting them as from today. ہم لوگ ناٹنگھم سے لے کے مینچسٹر تک کے لیے کام کرتے ہیں, اور آج جو یہ ایک تقریب یہاں پہ تھی جس میں کہ برمنگھم کے لوگوں کو, بزنس کمیونٹی کو یہ بتایا گیا ہے کہ مڈلینڈ ڈاکٹرز ایک وہ چیریٹی ہے جو کہ بغیر کسی ایڈمنسٹریشن فیس کے کشمیر میں مظفر آباد میں اپنا ہاسپٹل چلا رہی ہے. جو بھی پیسہ ہمارے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ بزنس کمیونٹی کے ہوں, ڈاکٹرز ہوں, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ مڈلینڈ ڈاکٹرز کے لیے استعمال میں آتا ہے. شرکا کا مزید کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب فلاحی کاموں میں بھی اس جذبے سے مصروف عمل ہیں. اسی وجہ سے ہم ان پر اعتماد کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. حدیقہ شاہین, CNI نیوز, برمنگھم. ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ کشمیر پریمیئر لیگ کے تیسرے سیزن کی افتتاحی تقریب برمنگھم کے مقامی ہال میں منعقد کی گئی, جس میں کشمیر پریمیئر لیگ کے صدر عارف ملک, شہزاد اختر, MP خالد محمود سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر شہریار افریدی تھے. شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر پریمیئر لیگ کشمیری نوجوانوں کے لیے صحت مندانہ اقدام ہے, جبکہ اس سے عالمی سطح پر کشمیر پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. احوال جانتے ہیں سید عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں. کشمیر پریمیئر لیگ کے 2 کامیاب سیزن منعقد کروانے کے بعد لیگ کی انتظامیہ نے کشمیر پریمیئر لیگ کے تیسرے سیزن کا باقاعدہ آغاز برمنگھم تقریب سے کیا. تقریب کا آغاز پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانوں سے کیا گیا. اس موقع پر صدر لیگ عارف ملک, چیئرمین توقیر احمد, CEO شہزاد چودھری, چیف مارکیٹنگ آفیسر ثاقب الرحمان, ہیڈ آف میڈیا اینڈ پبلک ریلیشن UK یورپ ناصر اقبال, چیف کوآرڈینیٹر UK سرفراز نواز اور دیگر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پریمیئر لیگ کشمیری نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانے اور ان کو بڑے کھلاڑیوں سے سیکھنے کے موقع فراہم کرے گا. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کشمیر سے کسی ایونٹ کو دنیا بھر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے دیکھا ہو. لیگ سے جہاں ایک طرف کشمیری ٹیلنٹ کو ابھرنے کا موقع ملے گا, وہیں اس سے مسئلہ کشمیر کو تقویت ملے گی اور کشمیر میں سیاحت کو فروغ ملے گا. اس موقع پر MP خالد محمود نے کہا کہ انڈین کرکٹ بورڈ کی کشمیر پریمیئر لیگ کے حوالے سے کی جانے والی سازشوں پر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. جو KPL کی یہاں ایک اور لانچ ہو رہی ہے, ہمیں فخر ہے کہ KPL اسٹیبلش کیا گیا ہے. اس کی جو بھی کافی جو رننگ ہے, تو روان صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ برانڈ جو ہے بہت بڑا ہو, اور جہاں تک ابھی ہندوستان کو اس کا جو ان کو رنج آ رہا ہے, ان کو اتنا مشکل ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ کشمیر پریمیئر لیگ اسٹیبلش ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ صرف اس کے لیے نہیں, پر اور ہمارے جو نوجوان پاکستانی اور کشمیری پلیئرز ہیں, ان کو آگے بڑھنے کی یہ اور جو سپورٹ ہے وہ مل رہی ہے. اور ہم چاہتے ہیں یہاں سے بھی ٹیمیں جائیں, یہاں سے جو ہمارے بچے جو کر رہے ہیں وہ بھی آگے جائیں. اور یہ ایک پریمیئر لیگ جو ہے وہ صرف آزاد کشمیر پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک فخر چیز ہو, جو ہم دکھائیں کہ ہندوستان لوگوں کو کشمیر کی ایسپریشنز کو روک نہیں سکتا. جبکہ سابق وزیر شہریار افریدی نے کشمیر پریمیئر لیگ کی کامیابی میں کردار ادا کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز کشمیری ممبران پارلیمنٹ کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے, اور برطانیہ میں بسنے والے تمام پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو ایک جان ہو کر اس لیگ کی کامیابی اور کشمیر کی آزادی کے لیے برطانوی حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہیے. قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی بنیاد سے جڑی ہوتی ہیں, قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی بنیاد کو اجاگر کرتی ہیں, قومیں وہ نہیں ہوتی جو کہ چھپتی ہیں یا ڈر جاتی ہیں یا سر جھکاتی ہیں. غیرت مند قوم کشمیری غیرت مند لوگ ہیں, وہ ہر چیز مقبوضہ کشمیر میں جائیں
पैसे को, ओहदे को, रुतबे को, हर चीज को उन्होंने टुकरा है, हर कुर्बानी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। सो 5 फरवरी सॉलिडारिटी डे है। अक्रॉस द ग्लोब जितने कश्मीरी हैं, जितनी माएँ बहनें, जितने बुजुर्ग जवान हैं, आपसे मेरी हम्बल सबमिशन है, अपनी आवाज खुद बने। CNN न्यूज से बात करते हुए मेहमान खुसूसी और दीगर ने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग की तकरीब रुनुमाई आज के दिन करने का मकसद निहत्ते कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती भी है, क्योंकि जिंदा कौमें अपने हकूक के लिए यकजा हो जाती हैं। इसलिए आप सब भी मिलकर कश्मीर की आजादी के लिए आवाज बुलंद करें। इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में एक दिन जरूर कामयाब होंगे। जहाँ तक हमारे पड़ोसियों का ताल्लुक है, तो मैं आपको जो पहला सीजन था 2 साल पहले, उसकी अगर आपको फिगर्स बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और स्पोर्टिंग क्या पॉलिटिकल इवेंट नहीं हुआ होगा जिसकी 43 मिलियन की व्यूअरशिप है सोशल मीडिया के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली अभी जो पिछला सीज़न था उसमें बारिशों की वजह से थोड़ा व्यूअरशिप कम हुई। तो आप इमेजिन करें ना कि अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडियन हेल्ड ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे 9 लाख ट्रूप्स हैं और मुजफ्फराबाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रिकेट हो रही हो, तो ये दुनिया में क्या मैसेज आपको भिजवाता है। CEO कश्मीर प्रीमियर लीग और कश्मीर प्रीमियर लीग का जो हमने बड़ा उठाया था डेफिनेटली सीज़न 3 पे, कश्मीर यकजहती के दिन पे कश्मीर प्रीमियर का सीज़न 3 का लॉन्च इस बात का सबूत है कि जो हमने बेड़ा उठाया और हम कश्मीरियों के दरमियान में आके बैठे हैं और हम इनको इनवाइट भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं और इनको इनवाइट भी कर रहे हैं इस वे में कि जो हम सीज़न 3 के अंदर जो फीडर लीग है जो अगले महीने स्टार्ट हो रही है और बच्चों की ग्रूमिंग के लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं। KPL की जो तंजीम यहाँ पे जहाँ पे शुरू हो रही है उसका हमें बड़ी खुशी हुई है। ये नौजवान जो बच्चे हैं इसके अंदर वो शामिल होंगे और इसके बड़े अच्छे असरात मरतब होंगे और मैं चाहता हूँ कि हमारे कश्मीरी जो बच्चे और नौजवान हैं, बड़े टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं, उनको इसके अंदर भी शामिल किया जाए। ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमारे आज़ादी कैंप में बहुत बड़ा काम है। जिस तरह हिंदुस्तान कश्मीरियों पे जुल्म सितम कर रहा है और ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम यहाँ पे खेलें करवा रहे हैं। आज़ादी कैंप जो हमारा बेस कैंप है वहाँ पे इस तरह खुलकर जो यानी एक किस्म की कश्मीर की हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कितना अमन है। KPL का आगाज़ हमारी कश्मीरी कम्युनिटी के लिए और हमारी रिकग्निशन के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन आज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में KPL की लॉन्च हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर को वर्ल्ड मैप पे लाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करेगा और मैं यहाँ के तमाम मुंतज़मीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो KPL ने एक नई रूह फूंकी है, सियाहत को फ़रोग़ दिया है, मसला कश्मीर को आलमी सतह पर जो उजागर किया है KPL आई थिंक सो कि भाई एक अच्छा इकदाम है और एक बेहतर तरीके से वो एक आज़ाद कश्मीर के अंदर काम करे और हम ओवरसीज़ की जो कम्युनिटी है वो इनके साथ फुली सपोर्ट करते हैं। उम्मीद और कोशिश यही है कि जितने यहाँ पे कश्मीरी है उन सबको इंगेज करके हम सीज़न 3 में अपने साथ ले आएँ और वहाँ पे हम मिल के काम करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूथ। वहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी है उसके बेस पे हम इंगेज करें लोगों को, इन्वेस्टर्स को, और कश्मीर के लिए मिल के हम काम करें। आई थिंक कि कश्मीर प्रीमियर लीग इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यंग जनरेशन कि उनके पास टैलेंट है तो उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। इदारा मार्फ इस्लाम बर्मिंघम में 13 रजबुल मुरज्जब की मुनासिबत से यौम विलादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें मिडलैंड्स भर से मोमिनीन और मोमिनात ने खुसूसी शिरकत की और सालगिरह का केक काटा। इस पुरमसरत मौका पर शुरका की जानिब से आलम इस्लाम को दिली मुबारकबाद पेश की गई। रिपोर्ट करेंगे अली रजा। 13 रजबुल मुरज्जब विलादत बासआदत अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम से इदारा मार्फ इस्लाम बर्मिंघम में मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मोमिनीन और मोमिनात ने शिरकत करके मिलकर एक बड़ा केक काटा। इस मौका पर मकामी मनक़बत खान ने अपने कलाम से शुरका को खूब महसूस किया। मैं हूँ रोज़ी रसा ज़माने का, ये तुम्हें किबरिया बताता है, मेरे ही दर से मीकाईल सुनो, रोटियां मांगने को आता है, रोटियां मांगने को आता है।
जबकि मारूफ आलिम दीन मौलाना मुअज्जम अब्बास ने जश्न मौलूद काबा से खिताब करते हुए कहा कि ये दिन हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है और इसका नफा दुनिया और आखिरत के लिए है। ता क़यामत आप अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा हस्ती के फयूज़ बरक़ात जारी रहेंगे। हमारी इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती और खुशबख्ती होगी कि बादस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने अपनी रहनुमाई के लिए आप जैसी अजीमुल मर्तबत हस्ती का दामन पकड़ा। ये दिन तमाम अदालत खाहों और हुर्रियत पसंदों के लिए मुबारक का दिन है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर शुजाअत व जवामर्दी मयार फजीलत है तो आप जैसा शुजा कोई नहीं, यानी शेर खुदा लक़ब पाया। इसार कुर्बानी में भी सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। फजीलत के जितने भी मयारात हैं उन सब में आपकी जात अक़दस कामिलो अकमल है। दूसरों को ऐसी खुशी दे के जाए जिसका कहीं पंजाबी में कहते हैं टंग पूछल ही ना हो, और जब वक्त आए सुनने का तो वो मैदान छोड़ के गायब हो जाएं, तो इस्लाह तो मुमकिन ही नहीं है। फिर जी हमारी ड्यूटी है, वाजिब शर्ई समझकर मैं कह रहा हूं कि अजीजान सारे मोहतरम हैं, सारी दुनिया को कुछ न कुछ कहना चाहिए, लेकिन वो कहना चाहिए जो बनता है। तो ये बहरहाल मेरा कहना जरूरी था, आप पर थोपना कोई वाजिब नहीं है, आप जाने और आपका काम हो, इसलिए कि कल जब उस बारगाह हकीकी में जब पहुंचेंगे तो फिर हमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या कहा और तुमने क्या सुना। इसलिए कि जिस कुरान की कापी आपके घरों में है ना, देखा करें कभी कभी उसी कुरान में लिखा हुआ है मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। उससे कोई चीज छुपी नहीं रह जाएगी, वो अच्छा अमल भी दिखाया जाएगा और बुरा अमल भी दिखाया जाएगा। इस पुरमुसरत मौका पर एक बड़ा केक काटा गया। तमाम शुरका ने एक दूसरे को मौला अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश की मुबारकबाद भी दी। इस दौरान मौलाना मुअज्जम अब्बास कमी, अदारा मारुफ इस्लाम के सदर अमजद शाह और राना इशरत ने CNN न्यूज से बात करते हुए कहा कि हजरत अली के नजदीक हुसूल इक़्तिदार का मकसद सिर्फ और सिर्फ हक का क़याम और बातिल के गुरूर को खाक में मिलाना था। आप इलाही हाकिम का आला तरीन नमूना थे। आज भी इंसानियत की तमाम तर मुश्किलात का हल आपकी सीरत व किरदार में पिन्हा है। 13 रजबुल मुरज्जब ये ऐसा दिन है कि हिस्ट्री में और तारीख में इसको भुलाया नहीं जा सकता। बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब भी भरी पड़ी हैं और अहले तशय्यो की कुतुब में भी मौजूद है कि एक बात तो तय है कि आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सिर्फ और सिर्फ खासा है अगर, तो वो हजरत अली का है कि विलादत जिस इंसान की काबे के अंदर हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब है। I congratulate and pass best wishes on to the entire world on the birth celebration of Imam Ali al-Islam on the 13th of Rajab. Imam Ali al-Islam is an exemplary individual throughout the world, and his message is for the entire world. You know, it's not confined to any particular community, any particular religion. His message of peace, his message of tolerance, and more so justice. 13 रजब मौलूद काबा का जश्न था बर्मिंघम में, तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में मोमिनीन ने सुन्नी शिया सभी मिल के उसमें तशरीफ लाए। शुरका का कहना था कि जश्न मौलूद काबा मनाने का मकसद मौला कायनात की शुजाअत व बहादुरी और सीरत से नई नस्ल को आगाही देना है ताकि रहती दुनिया तक ये सिलसिला कायम रहे। मोहम्मद उज़ैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम कौंसलेट के कम्युनिटी हॉल में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद और इसमें MPs, काउंसलर्स और पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के खवातीन हजरात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए, जबकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और काउंसलर्स ने भारत के मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डाली। अहवाल बताएंगे मोहम्मद उज़ैर अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम कौंसलेट में भी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, इसमें MPs,
काउंसलर्स, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की खवातीन और हजरात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के आगाज में कश्मीर और पाकिस्तान के तराने चलाए गए, जबकि एहतराम में शुरका खड़े हो गए। इस मौके पर काउंसलर जनरल सरदार अदनान रशीद और वाइस काउंसलर बख्तावर मीर ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए। Detentions has made the lives of Kashmiris a living hell. Extrajudicial killings, arson, torture and mass blinding of innocent Kashmiris continue unabated. The popular Kashmiri political leadership has been illegally detained or deliberately victimized through fictitious cases. The media has been silenced through coercion and religious scholars have been arrested. इस दौरान MP खालिद महमूद, MP ताहिर अली, काउंसलर मरियम खान, सलमा याकूब, कश्मीरी तंजीमों के सरबराहान और दीगर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मुजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए उनके अज़्म और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है और हमारा पुख्ता यकीन है कि एक दिन कश्मीरी अवाम भारतीय फौज के जबर और नाजायज कब्जे से आजादी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस मौके पर काउंसलर जनरल अदनान रशीद, MP खालिद महमूद, कैबिनेट मेंबर काउंसलर मरियम खान, सलमा याकूब और दीगर ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज बड़ी तादाद में कम्युनिटी रहनुमाओं ने यौम यकजहती की तकरीब में शिरकत करके ये साबित किया है कि इंसानियत का दर्द रखने वाली तमाम कुव्वतें कश्मीर के साथ खड़ी हैं। हमने इस बात का इहादा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम में पाकिस्तान हर हाल में कश्मीरी ब्रदर और सिस्टर्स जो इस वक्त इंडियन जुल्म और सितम का शिकार हैं, उनकी सियासी, सफारती और अखलाकी सपोर्ट जारी रखेंगे। Recognizing the fact that continuous abuse of the Kashmiri community that continues under the oppressive nation of India through Modi and the Hindutva radical government. And what we want to ensure is that we start to recognize in the West, who are the bastions of human rights and civil liberties, so we're continuously told, if that is the case, then the United Kingdom should not move with any trade agreement until the issues of human rights and civil liberties are resolved and India comes back into the international community. Otherwise, it's not a recognized nation. It certainly isn't the largest democracy in the world if it continues to behave in this manner. Human rights violations that are ongoing and the suffering that is happening and the plight of the Kashmiri population in Jammu and Kashmir is continuous after over second decades of injustices faced by them. It is our duty to raise their voice, raise awareness and continue to mark Kashmir Solidarity to campaign and continue to highlight the issues that are going on in Kashmir until we have a free Kashmir. The people of Kashmir know that they are not alone in their pain. We feel it, we can see their suffering. The Indian government has put so much resource in trying to make invisible the very real oppression and terror that they have unleashed on the people of Kashmir, and we are here to say we see it, we feel it, and certainly everything that we can do to resist that alongside our brothers and sisters in Kashmir. शुरका का कहना था कि जब भी मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हुई तो सबसे पहली आवाज बरतानिया से बुलंद होती है। आज हमने यही अहद किया है कि ये सिलसिला कश्मीर की आजादी तक जारी रहेगा। बरतानिया के शहर रौधम में कम्युनिटी हीरोज़ की हौसला अफजाई के लिए मेयर तजम्मुल खान की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें अल-फलाह सोसाइटी को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। उनकी तारीफ करते हुए कहा गया कि तमाम फलाही तंजीमों को इनकी तरह काम करना चाहिए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर रौधम में कम्युनिटी हीरोज़ की हौसला अफजाई के लिए मेयर ऑफ रौधम तजम्मुल खान ने प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें अल-फलाह सोसाइटी एसर की टीम को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया और उनके फलाही कामों की तारीफ की गई और कहा कि तमाम फलाही तंजीमों को उनकी तरह काम करना चाहिए, इनके काम गरीबों की फलाह के लिए हैं। इस मौके पर साबिक मेयर ऑफ रौधम चौधरी शौकत अली ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे इलाके में अल-फलाह सोसाइटी बहुत काम कर रही है और मेयर तजम्मुल खान का उनको मदऊ करना लायक तहसीन है। अल-फलाह सोसाइटी एसर के चेयरमैन जुल्फकार अहमद
मतियालवी ने खिताब करते हुए कहा कि तजम्मुल खान का मेयर बनना हमारे लिए फख्र की बात है और हमारे नौजवानों को इनके नक्श कदम पर चलते हुए मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने मेयर तजम्मुल खान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी पूरी टीम को मदऊ किया। हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे भाई और काम ऐसे फलाई काम करते हैं और गरीब आवाम का सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नायत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए आजकल, और बिलखसूस पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर खिते के लिए एक दर्द दिल रखना मैं समझता हूँ कि इंसानियत के तौर पर बहुत ही फ़ख्र है, और मैं एज मेयर ऑफ रॉदरम समझता हूँ कि इन्हें वेलकम करता हूँ। तजम्मुल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रॉदरम के मेयर हैं, उन्होंने हमें जो है ना इस अवार्ड से नवाजा है, तो हमें इनके फ़ख्र होना चाहिए कि ये आगे वाली हमारी आने वाली नस्लों के लिए कि इनके नक्शे कदम पर चलें। बहुत ही खुशी की बात है तजम्मुल साहब ने हमारी जो हम फलाई काम करते हैं अपने इलाके के गरीब लोगों के लिए, तजम्मुल साहब ने एज ए मेयर रिकगनाइज़ किया है। तजम्मुल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये कश्मीर के सपूत यहाँ आकर इन्होंने अपने एरिया का नाम रोशन किया। हमारे नौजवानों की इनकी तकलीद करनी चाहिए कि ऐसे नौजवान जो आगे आए हैं, हमारे नौजवानों को भी इनका नक्शे कदम पर चलना चाहिए और इलाके का नाम रोशन करना चाहिए। जो आपने ये ज़बरदस्त काम किया है उस काम को रिकगनाइज़ किया ताकि आने वाली जो नस्लें जिस तरह एक दूसरे को देखकर वो पॉलिटिक्स में आए हैं, एक दूसरे को दो वो प्रोफेशनल करियर उन्होंने अपनाया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम मिलजुल कर ये काम करें। तजम्मुल साहब से मुलाकात के लिए यहाँ पर रॉदरम में आए हैं, तो ये यहाँ पर मेयर हैं रॉदरम के, और ये फर्स्ट एशियन यंगेस्ट मेयर हैं। तो हमें इनसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई। इन्होंने चैरिटी के कामों को भी सराहा और हमें शील्ड भी अता की। तकरीब से सदर अल-फलाह सोसाइटी यूके मोहम्मद अयूब, इमरान सिद्दीक, काउंसलर गुलफराज हुसैन और हाजी महबूब हुसैन ने भी खिताब किया। और खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से, जहां तुर्की और शाम में पीर की सुबह आने वाले जल्जले के बाद मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि आलमी इदारा सेहत की जानिब से खबरदार किया गया है कि मुतासरीन की तादाद 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हो सकती है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कहना था कि इतनी बड़ी तबाही के लिए पेश की तैयारी मुमकिन ही नहीं थी। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी तुर्की और शुमाली शाम में सोमवार को आने वाले जल्जले के बाद अब तक 20,000 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक की जा चुकी है। शाम के शुमाल मशरकी सूबे अदलिब के लिए इमदाद का पहला काफिला तुर्की से शाम में दाखिल हो गया है, जबकि जल्जले से $4 अरब के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि जल्जले की तबाही के पेश नज़र शाम के इलाके में वाक़िया जेल से दाइश के मुतअद्दिद दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। शाम के जल्जला ज़दा इलाके में वाक़ एक जेल से मुतअद्दिद दाइशी दहशतगर्द फरार हो गए हैं। फ्रांसीसी ज़राए के मुताबिक ये वाक़या शाम के शुमाल मगरबी इलाके में रोनमा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले के बाद 20 दाइशी दहशतगर्द राजू जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। बताया जा रहा है कि 2000 कैदी इस जेल में मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक दाइश दहशतगर्द गिरोह से था। तुर्की की सरहद के करीब वाक़ इस जेल के एक अहदेदार ने बताया कि जल्जले के बाद कैदियों ने बगावत कर दी और जेल के बाद हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मजीद बताया कि इस जेल में 1300 से ज्यादा दाइशी कैद थे। इधर बताया जा रहा है कि ये वाकया ऐसी हालत में पेश आया जब शाम के जल्जला ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाई का सिलसिला जारी है और मलबे में दबे अफराद को बचाने की कोशिश भी जारी है। दूसरी जानिब शाम के मुकामी ज़राए ने ऐलान किया है कि शाम में आज के शदीद जल्जले में हम्माह में शदीद तबाही और शाम के वज़ीर आज़म की बहन भी जाँ बहक हो गई। महर खबर रसा एजेंसी ने अल मियादीन से नकल किया है कि तुर्की और शाम के आज के शदीद जल्जले में शाम के वज़ीर आज़म हुसैन अरनूस की बहन नसूब अरनूस अपने खानदान के 9 अफराद समेत शुमाली शाम के सूबा हम्माह में मुनहदिम होने वाली इमारत के मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। मीडिया ज़राए का कहना है कि शाम के शुमाल में शदीद जल्जले की वजह से अल अरबाइन के इलाके में शुमाल के वज़ीर आज़म की बहन का घर मुनहदिम हो गया और इस वक्त घर में मौजूद ज्यादातर अफराद जाँ बहक हो गए। याद रहे कि शाम में आज आने वाले 7.7 शिद्दत के जल्जले में शदीद तबाही हुई और सैकड़ों अफराद इस कुदरती आफत का निशाना बने। शामी हलाल अहमर के मुताबिक जल्जले में 350 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हलब, हमा और अदलब के शहर इन अहम इलाकों में शामिल थे जहां इस 7.7 शिद्दत के जल्जले ने शदीद तबाही फैलाई। और यहाँ आपको बताएं कि साबिक आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा 7 फरवरी को मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की गई। मरहूम को मुकम्मल फौजी एजाज़ात के साथ सपुर्द खाक किया गया।
मरहूम की नमाज जनाजा में हाजिर और रिटायर्ड अस्करी क़यादत समेत पाक फौज और दीगर रियासती इदारों के सरबराहों और हज़ारों चाहने वालों ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक साबिक फौजी सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कराची के मलीर कैंट में वाक़ पोलो ग्राउंड में अदा कर दी गई। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के अलावा परवेज मुशर्रफ के जनाजे में मौजूदा और रिटायर्ड आर्मी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी, कमर जावेद बाजवा भी इस जनाजे में शरीक थे। ख्याल रहे साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की आखिरी रसूमात फौजी एजाजात के साथ अदा कर दी गईं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।